Good morning student. Today we will be do revision of chapter 3 separation of substance. What is separation and why it is necessary? Separation is to separate one substance from another, and why it is necessary? To separate unwanted things from a mixture. Now what is mixture? Substance that contain two or more component mixed together is a mixture. ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक साथ मिक्स होते हैं उसे हम मिक्सचर बोलते हैं. एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. किस वजह से होता है? सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. एक मिक्सचर में से जो काम के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. एंड टू सेपरेट अनवांटेड मटेरियल, जो काम के नहीं हैं अनवांटेड मटेरियल से उनको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. एंड टू गेट प्योर सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस हम लेने के लिए जिसके अंदर हम लोग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दें, तो इसके लिए हम लोग इस सेपरेटिंग मेथड को यूज़ करते हैं. एंड हियर सम कॉमन मेथड्स विच are used to separating substance that are mixed together. So some common method are tracing, winnowing, hand picking, sieving, sedimentation and decantation, filtration, evaporation and condensation. So these are some common method which are used to separating substance that are mixed together. Here in this module today we will be learn about some common method: tracing, winnowing, hand picking and sieving method. So let's learn tracing method first. ट्रेसिंग मेथड. बच्चों, जब फसल पक जाती है और काट ली जाती है तो उनके जो ड्राई स्टेम्स होते हैं दैट आर कॉल्ड स्टॉक्स, एंड ग्रेन्स नीड्स टू बी सेपरेट फ्रॉम these stalks. So what method is used? Tracing method is used to separate grain from the dry stems or stalks. So the process of beating harvested crops to separate seed from the stalks is called tracing. So what's the method is? It is done by manually or with the help of machine. In manually method, what the farmers do, they holding pile of crops or stalks in their hand and then beating it on the rock or hard surface. इससे क्या होता है, जैसे ही वो बीट करते हैं हार्ड सरफेस पे बाइल ऑफ क्रॉप्स और स्टॉक्स को, ग्रेन्स उसमें से लूज़ हो जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं. तो ये एक मैनुअल मेथड होता है इसका ट्रेसिंग का. नाउ विद द हेल्प ऑफ मशीन, ट्रेसर्स आर यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक. इन कंबाइंड हार्वेस्टर ये सारे काम करता है, फसल को काटने से लेकर ग्रेन्स को सेपरेट करने से लेकर और उनको क्लीन करने तक, ये तीनों काम एक साथ वन ऑपरेशन में ये करता है, इसलिए इसे कंबाइंड हार्वेस्टर बोला जाता है. नाउ आफ्टर थ्रेसिंग प्रोसेस, these threshed grain still contain some impurities like dry stems, leaves and some unwanted material particles together that is called chaff. So this chaff is separated then winnowing method. So what is winnowing method? In winnowing method, the method is used to separate chaff from the grain by wind or blowing air. This method is called winnowing method. This method of separating is based on weight of substance. Means एक बार आप जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, फार्मर इज स्टैंड ऑन हायर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड एंड विनोइंग बकेट का यूज़ किया जाता है जिसमें से ग्रेन्स आर लेट द ग्रेन्स फॉल ऑन द ग्राउंड. जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरते हैं ग्रेन्स, दे ऑब्वियसली ग्रेन्स बीइंग हैवियर इन वेट, सो क्या होता है उनकी एक सेपरेट एक हील वो सेपरेट इकट्ठा होते जाते हैं. एंड chaff being lighter in weight, so they carried away from air and make a separate heel away from grain. एक अलग से heel बना लेते हैं grain से separate, and this chaff is further used as fodder for cattle. जो कि cattles होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए ये as a fodder ये use किया जाता है. Now next is
hand picking method. Very simple method. In this method, separating is based on the size or shape of color or color. So इसमें क्या होता है कि जैसे जो एक तो सबसे पहले इसके लिए क्वांटिटी, इसकी कुछ कंडीशंस होती है. एक तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए मिक्सचर की जिसको हम सेपरेट कर सकें. दूसरा जो साइज़, शेप और कलर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए सब्सटेंस से, तो तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस मेथड इज़ यूज. जब हम राइस, व्हीट और बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो still they contain some harmful material or some harmful particles that need to be separated. तो उसको हम लोग, आपकी मम्मा वगैरह उसको हैंड से पिक कर कर और उसको सेपरेट करती है. सो दिस मेथड इज़ यूज. दिस मेथड इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड. नाउ नेक्स्ट इज सीविंग मेथड. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपने ये घर में भी देखा होगा. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट साइज ऑफ द सब्सटेंस. मतलब पार्टिकल्स के जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसके साइज पे डिपेंड करता है, स्मॉलर और लार्जर. तो सो सीव्स इज यूज इन दिस मेथड. द पार्टिकल्स विच जो पास हो जाते हैं पोर्स से वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो बिगर होते हैं साइज़ में वो सीव्स के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से इन दोनों मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मम्मी आटा छानती है तो आपने देखा होगा फ्लोर को छानते समय ऊपर ग्रेन्स का वो इकट्ठा हो जाता है और नीचे फ्लोर जो होता है, फ्लावर जो होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है. हालांकि उसे हमें सेपरेट नहीं करना चाहिए था क्योंकि इट्स कंटेन फाइबर्स विच इज़ वेरी यूजफुल, विच इज़ वेरी न्यूट्रिएंट फॉर अस. ओके, सो दीज आर सम कॉमन मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. Children, read this method and learn this method. Thank you.